Hello everyone, dear students, very good afternoon to all of you. Today we are going to discuss the grammar tenses. And I know that the topic is not new for you. You may have confronted with the topic right from the 4th or 5th standard. But here on we must read the various concepts of tenses. What is tense all about? Tense is time plus action. Okay? Tense है क्या? Time और action का समन्वय ही क्या है? Tense है. You all know very well about 3 types of tenses. Okay? He plays in the evening, he played in the evening, and he will play in the evening. Okay, different time and mode. Here on, before going ahead, let me give you a detailed chart for remembering the various tenses. So what you certainly do, write down here present, past and future. See, indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Okay. See, present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. And in the same way, past indefinite, past continuous, past perfect continuous, future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. कौन से टेंस में वर्ब की फॉर्म क्या रहेगी, फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस क्या रहेगा, इसके लिए आपको ये फिलअप करना है. फर्स्ट देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट. You know very well, present indefinite verb की first form plus SIS along with do or does. Never try to cram these various parts. Just try to learn. Verb की first form plus SIS do and does. Use of do and does. Okay. Past indefinite always verb की second form and in नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. एंड इन फ्यूचर इंडेफिनिट शैल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आपको ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SIS, जहां डबल S, CH, X, O ये हो, वहां पर हम किसका यूज करेंगे? ES का. क्योंकि यदि इनके साथ भी हम अस लगाएं तो फिर वो प्रोनाउंसिएशन नहीं बन पाएगा, इसलिए हम इनके साथ क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं. जैसे कि डबल S इसके लास्ट में हो, SH हो, X हो, O हो, CH हो, इस प्रकार से. अब आज ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. वर्ब की फॉर्म हमेशा लिंगर ऑन करती है कॉन्टिन्यूस टेंस कोई भी हो. जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस में was verb plus verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में shall, will, be वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रहेगा पैटर्न? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके. और पास्ट परफेक्ट में जिसको हम पास्ट ऑफ द पास्ट बोलते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. और फ्यूचर परफेक्ट में shall have, will have
ओके, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज, हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस पावर। इसी प्रकार से हैड, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और shall have, will have, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी। The first tactics you would like to adopt while learning tenses is to start right from beginning of this start. Everyone must, learn the basic thing of the tenses about the form of verb, the helping verb, where to use do, does, where to use did, what happened the formation while if used did in the particular simple past tense, and in the same way each and every part you must be feel comfortable while formulating these sentences. Dear students, here today I would like to discuss on present indefinite and present continuous tense. Okay, present indefinite verb की first form plus SCIS do or does. Everyone knows about do or does. I think that so because you are learning these things right from the 4th, 5th standard. But here on, let me tell you one or two things. I hope you write down. Subject plus verb plus object. Okay, see, subject plus do or does plus not plus verb की first form plus object, and if there is interrogative sentence then do or does plus subject plus verb की first form plus object. ये फॉर्मेट है जिसको आप फॉलो करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब डू और डज की बात आए तो आपको क्या ध्यान रखना है? आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे डू, और ही, सी, इट सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, और सिंगुलर के साथ क्या लगाओगे? डज का प्रयोग करोगे। ओके, अब आइए आगे जो इंपॉर्टेंट जो बातें वो शुरू होंगी। देखिए, आप बताइए कि मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, बल्कि 3 सेंटेंस लिखता हूं। व्हाट ही knows about you. What he knows about you. देखिए, if there is an error then make it count. The second, I do not know what. I do not know what he knows about you. Okay, I do not know what he knows about you. Third देखिए, the appeal of the victims to transfer the cases related to the riots, okay, to
some other states do not affect it, the merit of cases. The merit of cases. फर्स्ट देखिए हमने क्या लिखा इसमें, व्हाट ही नोज अबाउट यू। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर आप यूज करते हो। व्हाट क्वेश्चन मार्क, वेयर इज योर टेंस फॉर्म, वेयर इज योर टेंस फॉर्म, व्हाट डज ही नोज अबाउट यू। आई डू नॉट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू। अब यहां आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि इट इज एक्चुअली not in the question form, it is just a connector here. यहाँ क्या है, ये connector है, connect करता है sentence को, so that's why it is not do or does not used here. थर्ड पार्ट देखिए इसका जो अभी मैंने लिखा, the appeal of the victims to transfer the cases related to the riots to some other states do not affect the merit of cases. You know, verb must agree with the actual subject. Sometimes what happen, we take the verb according to the artificial subject in the sentence. What is the exact, part of subject here? That is important. Appeal. And according to appeal, we can't write down do, we must write down does. The appeal of the victims to transfer the cases related to the riots, transfer the cases related to the riots to some other states doesn't affect the merit of cases. Here, not according to the states, but according to appeal. The verb must agree with the real subject in a sentence. तो इसमें मैंने बताया what की does, बिकॉज आपको क्या टेंस फॉर्म लेकर के आनी है। आई डो नॉट नो व्हाट क्यों नहीं लगाया यहाँ पर, क्योंकि ये कनेक्टर के तौर पर है यहाँ पे, और अपील के साथ डस का प्रयोग हम करेंगे, डू का प्रयोग नहीं कर सकते। सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ प्लूरल का प्रयोग करेंगे। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। द वर्ब मस्ट एग्री विद द रियल सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। देखिए हमें डू डस का प्रयोग देखा, प्लूरल के साथ आई वी यू दे के साथ डू, और ही सी इट इनके साथ क्या है सिंगुलर। अब यूज में बहुत ज्यादा यूज नहीं देखने आपको क्या करना है, एक तो रेगुलर एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या है, रेगुलर एक्शन है, दूसरा कोई भी हैबिट है, तीसरा यूनिवर्सल ट्रूथ है, और फोर्थ साइंटिफिक फैक्ट है। क्या है, साइंटिफिक फैक्ट। इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। कोई भी रेगुलर एक्शन है, हैबिट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, रनिंग कमेंट्री है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस है ना। साइंटिफिक फैक्ट की बात करें तो क्या है साइंटिफिक, जिसको कोई गलत साबित ना कर सके। यदि मैं ये कहूं कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इट इज साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सच्चाई है जो। द सन राइजेस इन द ईस्ट, हैबिट जिसमें डेली का यूज होता है, जिसमें एवरीडे का यूज होता है, रेगुलर रिपीटेड एक्शन। तो यहां पर तो हम लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई भी हैबिट है, आदत है, जिसमें डेली का प्रयोग होता है, एवरीडे का प्रयोग होता है, यूजुअली का प्रयोग होता है, ओके, उसमें रेगुलर कोई एक्शन है। इरेगुलर एक्शन के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें कि जापान में अमूमन भूकंप आता है, तो इसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि कोई भी प्रेजेंट का एक्शन एक तो होता है आपका परमानेंट, और एक होता है
टेम्परेरी, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। परमानेंट है उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट का, और प्रेजेंट टेम्परेरी है उसके लिए इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपको प्रयोग करना है। देखिए मान लीजिए कि कहा जाए कि ही लिव्स इन न्यू दिल्ली, और मैं यहां पर लिखता हूं कि न्यू दिल्ली इज फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम दीज डेज। The world is facing a deadly disease COVID-19 these days. He is preparing for HSSC exam. और मैं यहां पर लिखूं कि he is in the Navy। आप देखोगे कि क्या है, कहां रहता है, न्यू दिल्ली में, परमानेंट एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन न्यू दिल्ली इज फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम दिस डेज। इट मींस दैट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम विल नॉट बी for a longer period of time. Okay, that's why present continuous. The world is facing the deadly disease COVID-19 these days. हो सकता है 1 month after you will be find everything smooth. So present continuous. He is preparing for HSSC exam these days. He is preparing for HSSC exam these days. Here on, he lives in New Delhi. He is in the Navy. And these type of sentences shows the permanent existence of action। और ये क्या है, टेम्परेरी है। तो यहाँ प्रेजेंट में ध्यान रखना, परमानेंट शो करे इस तरह के स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेस में तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। और यदि कंटिन्यूटी को ज़्यादा समय तक शो नहीं हो रही हो, जो टेम्परेरी एक्शन हो, तो उसके लिए आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। तो ये ध्यान रखने की बातें हैं आपको। वैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है, और ये कॉन्टिन्यूटी इन द एक्शंस बोलते समय जारी रहने वाले कार्य के लिए हम यूज करते हैं। सो यू हैव टू लर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टुडे वेरी वेल। इन नेक्स्ट पार्ट आई वुड लाइक टू टीच यू फर्दर।